کوئی سارو وفا زندہ دلی سب کا مجموعہ ہے رحمت لکھنوی کوئی سارو وفا زندہ دلی. السلام علیکم ناظرین. رحمت لکھنوی صاحب لکھنؤ کے پختہ کار شاعر ہیں. اساس فکر ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جس کے رسم اجرا ہوٹل میزبان لکھنؤ میں ادیبوں شاعروں کی موجودگی میں ہوئی. نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی اور فریضہ صدارت ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم علوی نے انجام دیے اور اپنے خطاب میں کہا: رحمت لکھنوی نے شاعری سے شہرت و دولت کے بجائے سچی عظمت حاصل کر لی ہے. پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ. محمد علی علی صاحب کے بعد میں چلتا ہوں سیدھے سیدھے جناب خلیل احسن صاحب کے حضور کی تشریف لائے اور اپنے دوست ان کے رفیق نے دیکھا ہے کہ متعلق جنجوبین ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اندر تاریخ کا حصہ بنے. جناب خلیل احسن صاحب ادبی کاوشوں کے حوالے سے تصنف کے حوالے سے قابل ذکر ہیں، بارہ بنکی سے انتظار ہے. آج ہمارے درمیان مہمان کرام، سامعین و حاضرین، آج اس مبارک موقع پہ میں اساس فکر کے تخلیق کار میرے ہمدم نعینہ جناب رحمت رسول رحمت لکھنوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ان کا تخلیقی سرچشمہ جاری و ساری رہے اور اسی طرح وہ دوسرے مجموعوں کی صورت میں ان کی تخلیقات منظر عام پر آتی رہیں. آج کا یہ موقع واقعی میرے لیے بھی بہت باعث مسرت ہے کہ ایک اچھا مجموعہ اساس فکر کی صورت میں منظر عام پہ آیا. رحمت بھائی کو جب سامنے آتے ہیں اپنے شعری فکر کے حوالے سے یا اپنی شخصی زندگی کے حوالے سے تو مجھے بار بار پتہ نہیں کیوں مرحومین میں احسان دانش یاد آ جاتا ہے کہ ایسا نوجوان جو اپنی معاشی فکروں کے حوالے سے جس نے کبھی اپنی شعری اساس کو متاثر نہیں ہونے دیا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کام انتہائی ایمانداری سے جاری رہے، یہ عظیم کارنامہ رحمت رسول رحمت لکھنوی کا ہے کہ شاعر مزدور احسان دانش اور اسی کی روایت کو زندہ و پائندہ آج کی اس دور میں کرنے والا اہم شاعر رحمت لکھنوی. ان کے پورے مجموعے میں یہ فکریں آپ کو جو نظر آئیں گی وہ اسی کا پیش خیمہ ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، انہیں شاید اس میں کچھ عکاسی ہمارے رحمت بھائی کی ہو جائے. شعر آیا تھا پاکستان کے کسی شاعر کا کہ ضرورتوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، ضرورتوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، نہ جانے کتنی زمینیں جو آسماں ہوتی. ضرورتوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، نہ جانے کتنی زمینیں جو آسماں ہوتی. بہرحال وہ نہ ڈوبے بلکہ وہ آسمان کی طرح آج آسمان ادب پہ روشن چاند تاروں کی طرح ان کا کلام جگمگا رہا ہے. مبارکباد قبول فرمائیں اور اسی کے ساتھ میں اپنے کلام کو بہت مختصر اور بھرپور گفتگو عالموں کا بھی اظہار اور ان کی شخصیت کا بھی آپ نے خاکہ کیا. واقعی ان کی زندگی مجاہدانہ ہے اور شاعری کی اسی بڑی سی اتہاس سے عبارت ہے. میں چاہتا ہوں جناب زبیر انصاری صاحب کے حضور کی ان کے متعلق انہوں نے بخشوں سب کو دیکھا ہے، سمجھا ہے. زبیر انصاری صاحب کی بہت ہی متعدد شخصیت ہیں. ادب کے حوالے سے خفیہ کا کام جو ہے وہ جاری ہے. یہ کس طرح سے چیز میں کھلنے سے لوگوں کے گھر میں چراغاں ہوتا ہے یہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس کا کبھی نہ کسی کو ہوتے رہنا چاہیے. یہاں ان کے ادب کے حوالے سے
जनाब जुबैर अंसारी है। आदाब जनाब, मैं शेर से शुरुआत करता हूँ कि मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं, मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। तो कोई शेर मेरी शनाख्त की नहीं, मैं शेर की अगर इसमें जो है और जब उसकी तर्जुमानी की तरफ जाता हूँ तो कुछ चंद नाम आते हैं जो इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो इस हुए हैं, जो अदब को फरोग देने में लगे हुए हैं, जो दबिस्तान लखनऊ की जो तहजीब और तमद्दुन जो है उसको ज़िंदा रखने में जो लोग पेश हैं, उनमें अगर सारी फहरिस्त एक लिस्ट बनाई जाए, एक फहरिस्त बनाई जाए तो जो नाम आते हैं उसमें एक नाम रहमत लखनवी साहब का भी है। तो इस पुरखतर दौर में, पुरफतन दौर में जहाँ पे लोग परेशान हैं, रोजी रोटी की फिक्र में लगे हुए हैं, ज़रिए मास की फिक्र में लगे हुए हैं, ऐसे पुरफतन दौर में असासे फिक्र की राह पे चलते हुए, गामजन रहते हुए पाए तकदीर तक पहुँचाना बहुत बड़ा काम था। मैं उसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ रहमत लखनवी साहब को। और वक्त ज़्यादा हो गया, मैं और एक शेर में ये नज़्म करता हूँ इन्हें कि जिन्हें इस किताबों से इस ज़माने में, जिन्हें इस किताबों से इस ज़माने में उन्हीं का जिक्र मिलेगा हर एक फसाने में, उन्हीं का जिक्र मिलेगा। बहुत जनाब जुबैर अंसारी साहब और कराम गुफ्तगू आपने की, उसके बाद मैं चलता हूँ मोहतरम अकरम अंसारी साहब के हुजूर। उसका ताल्लुक मुझसे बहुत ज़्यादा है, सभा के हवाले से भी, पोजीशन के हवाले से भी, और अहमद भाई हमारे शहर के शायर हैं, उनको न जानना भी कुफ्र है, इसलिए जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा। आज इस किताब के आने से एक बरसों की आपकी मेहनत रहमत साहब की सबके सामने आई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2010 से बल्कि 2008 से तो हम आपके साथ हैं। मैंने देखा आपके साथ 2011 में थी मोमिन सभा का सफ़र शुरू हुआ, उससे बहुत करीब आया। 2011 से जब पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा मोमिन सभा का हुआ, आपने उसमें निज़ामत की। उस निज़ामत के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से जो लोग आए और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो लोग आए, सब आपसे, आपके मिजाज से, आपकी निज़ामत से सब बहुत मुतासिर हुए। उसके बाद ये कारवां चला 2011 से चलते हुए आज 2022 है। इस दौरान तमाम सफ़र हमने आपके साथ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में किए, जहाँ आपने अपने अशार वहाँ पे प्रोग्रामों में पढ़े। ऐसे अशार थे जो कौम कुछ दे सकते थे, कौम से कुछ सीख सकती थी, कौम से आने वाले लोग से मोहताज हो सकती थी। इस बात के लिए एक बड़ा असर गया और लोगों में ये लगा कि हाँ वाकई रहमत लखनवी साहब, आपके जो भी शेर होते थे वो माने खेज इतने होते थे कि लोगों को दिल कुछ। इसी के साथ मोमिन अंसार सभा बनने के बाद हम लोग ये चाहते थे कि मोमिन अंसार सभा का एक तराना हो। उस तराने के लिए अब चूंकि हमसे देश भर के लोग, 15 स्टेट के लोग मोमिन अंसार सभा से जुड़े थे, तो हमने सबसे ये कहा कि आप कुछ ऐसा एक तराना लिख लीजिए मोमिन अंसार सभा के लिए। कहा चूंकि हम जिस जिले में जाते थे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, उनसे हम जिक्र क्या करते थे कि एक तराना लिख दीजिए। कुछ लोग लेके आए, लेकिन वो किसी एक के लिए था। हम लोग चाहते थे कि हम मोमिन हैं तो मोमिनों का तराना कहते रहे। बहुत सैकड़ों लोगों से हम जब भी कहीं जाते थे, जिस जिले में जाते थे, बैठ जहाँ पे कोई ताल्लुक रखने वाले लोग मिलते थे हमको, तो हम उनसे जिक्र करते कुछ तराना लिखते। ये चलता रहा कारवां, लेकिन हमें नहीं मिला। एक वक्त आया
एक दिन हम ऑफिस में बैठे थे, आप तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपने कहा कि आपका तराना जो मोमिन साहब सबर ये कहते थे किसी ने क्या लिखा। हमने नहीं, आज तक के जमाना हो गया, मैंने बहुत से बात की है लेकिन तराना आज तक से नहीं लिख पाया। कल ये लाइन है देखिए, और इसको देखिए, कुछ ऐसा सही रहेगा। मोमिन है, अंसार है, हम रब के फरमाबरदार हैं, हमें बस यही तो बात है भाई, यही चाहते हैं हम लोग। ये इसी को करेंगे तो फिर ठीक है, फिर 2 दिन बाद मिलेंगे। और जो 2 दिन के बाद जब आप तशरीफ लाए और जो तराना पढ़ा सुनाया तो हम लोग जो सुनता रहे। उसमें वो सब चीजें जो एक मोमिन में होना चाहिए, जो बताया गया, सब कुछ उसमें उनको शामिल किया। और उसके बाद जब तराना लिख दिया, उस तराने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने फिर पढ़वाया। फिर मुख्तलिफ प्रदेशों से लोग जब आते थे पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक वो इसमें एक नुक्ता भी नहीं लगा पाया तराने में, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। हम सोचते थे कि बड़े बड़े अदब के लोग जो मिलते थे वो के सामने देखिए तराना देखिए तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उस तराने की एक खासियत और है। जब कभी हम वो तराना, एक सानिया भी है, एक मौका भी एक पड़ा, जब राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा 2018 में हो रहा था तो वहाँ डॉक्टर विजय शर्मा साहब आए, बहुत उजलत में थे, हमारे चीफ गेस्ट बन के आए। कहने लगे अकरम अंसारी साहब बहुत जल्दी भी जाना, बस 10 मिनट के लिए आप पास हैं। तो हमने रुके थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा इस्तेकबाल तो कर दिया आपका। इस्तेकबाल करने के साथ ही उनको जब तराना पढ़ना शुरू हुआ तो वो बैठे बैठे अपनी टेबल पे हाथ थपथपाने लगे, बाबा वाह वाह क्या बात है करते रहे। और आखिर में आए थे 15 मिनट के लिए, 2 घंटे 2.25 घंटे बैठे रह गए उस गैस के पर। ये है बिल्कुल इंसानियत के लिए काम करने वाला, और इस तरह के लिखने के लिए तो मैं इस बात की मुबारकबाद देते हैं। और आपकी किताब में जितने अशार हैं, हम सब पूरी मोमिन साहब समाज बात पे दुआ करती हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी उम्र दे फरमाए, और आप ऐसी सरपरस्ती करते रहें। और आपके साथ जहाँ पे, क्योंकि आपके मशवरे बहुत मुफीद होते हैं, मुखलिस, और जैसे आपने कहा, हमारे निज़ाम फारूकी साहब ने भी कहा था और अभी लोगों ने, कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरी जो अदबी दुनिया में हम हैं इससे हम तिजारत करेंगे, इससे क्या करेंगे, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इसके लिए कभी फिक्र भी नहीं की। और ना मालूम कितने मुशायरों में हमारे यहाँ बहुत सारा सबर कार्यक्रम चलेगा, यूँ ही पढ़ के आ गए और लोग जो है आज भी को याद करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और आपकी इस किताब के लिए मोमिन साहब सभा वैसे तो आपकी 20 किताबें लेके अपने लोगों को देगी, लेकिन 20 किताब के हम कहते हैं 20,000 किताबें मोमिन साहब सभा के बीच में। अंसारी साहब, आपने 20 किताबों का ऐलान किया, और मैं तो कहता हूँ कि मोमिन अंसार सभा के एक मेंबर के घर में ये किताब होना चाहिए। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि इनसे और किताबें खरीदते लोगों को तस्लीम करूँ, उन लोगों को जो उर्दू से करीब आए, इसलिए नहीं कि उनको खराब किया जाए, बल्कि इसलिए किताबें पेश की जाना चाहिए। जिस तरह जमात इस्लामी या जिस तरह ईसाई लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं, उस तरह का हम उर्दू के लिए काम नहीं करते। हम आमतौर पर उर्दू को ही पढ़ते हैं। अहमद भाई मक्की साहब की किताब इसी शहर का ही, अरबी हस्तियाँ और बस्तियाँ, इसी शहर के मुताबिक सब कुछ लिखा है, लेकिन शायद ही किसी को तौफीक हो कि घर पे जाके किताब भी हासिल कर ले, किताब का इश्तिहार भी चला, किताब की सब फरोख भी हुई। इसलिए अरबी साहब का कहना ये कि अगर जिस कौम के लिए हम काम कर रहे हैं खुदा उसको तौफीक न दे तो 1 साल के बाद किताब को नजरियात करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। तो मैं इन्हीं के फतवे का अमल करता हूँ। मेरी किताब दानिशमहल में रखी 21,000 की वो फरोख्त हुई, और उसके बाद जो किताब है वो इस उम्मीद है कि अब्रासारी में तो आपका जिक्र है, उसमें हाफिज मिसबाह साहब की वालिद मौलाना का जिक्र है, डॉक्टर मंसूर खान का जिक्र है, और दीगर लोगों का भी जिनका जिक्र है उनको भी किताब दी जाएगी तो बड़ा जुल्म है। तो इसलिए मैंने ये जुल्म नहीं किया इन लोगों को। वो किताब वहाँ रखी है, किताब रहमत साहब के सामने रखी है, इस पर कुछ जुल्म नहीं है। अब मैं कहता हूँ अपने अंसारी साहब के बाद हमारी फहरिस्त से बहुत महदूद फहरिस्त रह गई है, जिसमें सैयद सूफी अली साहब हैं, बहुत ही मोहतरम और मोहतरम शख्सियत बनाई गई है। उसके बाद सदर की किताब की हुजूर मौजूद है, उसके सूफी सैयद अली साहब के मुताबिक ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनका मकसद क्या है। उनका कहना यह है कि वो दिनों को जोड़ते हैं,
تو تفریح میں مسلمین ہے اس کا سامنا کرتے ہیں اور ادب سے ان کی غربت ہے، اس لیے کوئی صوفی ہو اس کا ادب سے واسطہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ خالد صبر حدیث آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا نماز پڑھیے۔ صوفی صاحب سے پہلے میں چاہتا ہوں جناب عرفان نقوی صاحب کی حضور چلو کہ وہ آئیں، کیونکہ جب عرفان کی گفتگو ہو، عرفان غزل پہلے ہو، اس کے بعد تصوف کا عرفان ہو، حق کا عرفان ہو، جناب عرفان نقوی صاحب آپ کے حضور۔ کل کوئی سارو وفا زندہ دل، کل کوئی سارو وفا زندہ دل، کل کوئی سارو وفا زندہ دل، سب کا مجموعہ ہے رحمت لکھنوی، کوئی سارو وفا زندہ دل، کوئی سارو وفا زندہ دل، سب کا مجموعہ ہے رحمت لکھنوی، سب کا مجموعہ ہے رحمت لکھنوی، ناقدان فن کو بھی ہے تیرا، ناقدان فن کو بھی ہے تیرا، ناقدان فن کو بھی ہے تیرا، کتنی بامقصد ہے ان کی شاعری، ناقدان فن کو بھی ہے تیرا، کتنی بامقصد ہے ان کی شاعری، کتنی شرمندہ ہے رنگامیزیاں، کتنی شرمندہ ہے رنگامیزیاں، کتنی شرمندہ ہے رنگامیزیاں، دیکھ کر ان کے سہن کی سادگی، کتنی شرمندہ ہے رنگامیزیاں، دیکھ کر ان کے سخن کی سادگی، آپ ہی شہر ادب کی شان ہیں، آپ ہی شہر ادب کی شان ہیں، آپ کی ایک ایک ادا ہے لکھنوی، آپ کی ایک ایک ادا ہے لکھنوی، سب کا مجموعہ ہے رحمت لکھنوی۔ اور شاعر ہونے کا ثبوت دیا، وہ شاعر کے جاگتا ہوا نہ ہو، جو موضوع ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کا گلا گھٹنے میں آمادہ ہوں، کہیں نہ کہیں شاعر ہونے میں شک ہے۔ تو یہ جناب عرفان نقوی صاحب نے بیہم ثبوت دیا، بین ثبوت دیا کہ شاعر اگر ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جس موضوع پہ جس محفل میں جا رہے ہیں اس کا حق ادا کیا جائے۔ ایک شعر ایسا تھا کہ سنا جاتا، سب سنا جاتا، اور خود رحمت صاحب اگر ان کو الگ سے کوئی انعام بھی دیں گے بھوٹیا طریقے تو ہم لوگوں کو اعتراض نہیں۔ بہت اچھی شاعری آپ نے مبارک۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔